Dear learner, a very good morning to all of you. Now, in continuation to the previous chapter, chemical equilibrium, in this session I am going to discuss the characteristics of equilibrium constant. In last videos, we have learnt about equilibrium, type of chemical equilibrium, Kp, Kc, Kc, relation between Kp and Kc. Okay, and this in this session we are going to discuss the characteristics of equilibrium constant. So let us start this session. Now first, the characteristics of equilibrium constant. So the most important characteristics of equilibrium constants are discussed below. The first point is the equilibrium constant has a definite value for every reaction at a particular temperature. If temperature is kept constant, then the equilibrium constant has a definite value. Okay. Second, the value of equilibrium constant is independent of the initial concentration of reactant as well as products. The value of equilibrium constant is independent, that is, it does not depend on the initial or original concentration of reactants and product. Why? Because at equilibrium the concentration of reactants equal to concentration of products and do not change with time. Okay. Third, the value of equilibrium constant tells the extent to which a reaction proceeds in forward or reverse direction. So that is also known as spontaneity. If the value of K is larger, so this is important, if the value of K equilibrium constant is larger, then the equilibrium concentration of the components on the right hand side of the reaction will be greater than the component on the left hand side of the reaction. So it means the reaction proceed to a greater extent, having strong tendency for spontaneity or towards feasibility. Okay. So if the value of K is larger for any reaction, it means that particular reaction has a strong tendency to move in a forward direction, that is also known as feasibility or spontaneity of a reactions. In objective questions, this concept is very important. The equilibrium constant is independent of the presence of catalyst. So mind it, catalyst has no effect on equilibrium constant because this is because the catalyst affect the rate of forward reaction and backward reactions equally. So catalyst catalyze the forward and backward reaction in the same ratio. Okay. Yes, obviously due to presence of catalyst, the attainment of equilibrium will be faster, but no doubt the catalyst has no effect on the equilibrium constant. In fact, catalyst has no effect on any thermodynamic parameter like delta G, delta S, delta S, delta G, Kp, Kc. It only changes the value of activation energy. So which is a part of chemical kinetics. So first यहाँ पे equilibrium constant has a definite value. Generally, it is independent on the initial concentration of reactant and products. It tells us about the feasibility or spontaneity. Greater the value of K, greater will be spontaneity, and it is independent of the presence of catalyst, or catalyst has no effect on equilibrium constant. Next and most important, this one is most important. For a reversible reaction, the equilibrium constant for the forward reaction is inverse of equilibrium constant of the backward reaction. So just by reversing the reaction, the value of equilibrium constant will also reverse. That is Kc dash 1 equal to 1 by Kc. For example, let us suppose a reversible reaction A plus B equal to C plus D. No doubt we can write the equilibrium constant expression for equilibrium constant Kc, C into D upon A into B. Okay. So just suppose this is reaction number 1. Now by reversing this reaction, we can write CD equal to A plus B. Again, write the expression for this reaction. So product for this reaction is A into B divided by reactant C into D. Okay. Equation number 2. Now on comparing equation 1 and 2, we can write, we can see 1 by Kc dash equal to CD upon A into B, and which is what? Kc. So Kc dash equal to 1 by Kc. We can write Kc dash 1 into Kc equal to 1.
सो कंक्लूजन यहाँ से क्या है कि अगर किसी रिएक्शन को हम रिवर्स कर दे, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट कर दे, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड, या ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें न्यूमेरिकल मिलेगा। नेक्स्ट, if the coefficient in the chemical reactions are either double or half or multiplied by n, then the case is either squared, squared कब होगा, when multiplied by 2, और square root when divided by 2, 2 से डिवाइड करने का मतलब 1 by 2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, या by any number n, तो raised to power n power, replaced by the square root or raised to the n power। मतलब फॉर एग्जांपल a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, इसका हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा c टू d अपॉन a इंटू b। चलिए फर्स्ट केस यहाँ में लिया, व्हेन कोएफिशिएंट्स आर डबल, डबल मींस इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, होल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a 2b 2c 2d। नाउ kc डैश इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट c के पावर 2 रिएक्टेंट d इसका पावर, सॉरी प्रोडक्ट d के पावर 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स a के पावर 2 b के पावर 2, इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, c इंटू डी ए बी का पावर 2, और c इंटू डी ए बी क्या बता रहा है हमें, के सी, ये हो गया के सी का पावर 2। मतलब अगर किसी रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओरिजिनल वाले रिएक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली केस 2, व्हेन द कोएफिशिएंट्स आर हाफ, मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से डिवाइड करने का मतलब 1 by 2 से मल्टीप्लाई करना, 1 by 2 से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ में क्या लिखेंगे, c के पावर 1 by 2, d के पावर 1 by 2, a के पावर 1 by 2, b के पावर 1 by 2, होल का पावर 1 by 2, और ये टर्म क्या है, kc है, तो kc का पावर, ठीक है, 1 by 2 और अंडर रूट kc। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ में क्या आता है, इसका पावर 3 आता, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3, अगर यहाँ में 3 से डिवाइड किए होते तो इसका पावर 1 by 3, जिसको हम बोलते हैं क्यूब रूट, ये आ जाता 1 by 3। तो इन जनरल अगर किसी इक्वेशन को, स्टेशमेट्री को हम चेंज कर दें, मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका पावर 2, 2 से डिवाइड करें तो उसका पावर 1 by 2, 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसका पावर 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका पावर 1 by 3। ठीक है, सो ये 2 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, कि अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पावर होगा, जिस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने का मतलब 1 by 2 से मल्टीप्लाई करना, उसका पावर 1 by 2, दैट इज नोन एज स्क्वायर रूट। अगर इन केस मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका पावर 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका पावर 1 by 3। ठीक है, कभी कभी दोनों आपको मिक्स करके क्वेश्चन देगा, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल के लिए, अभी आगे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ व्हेन ए नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आर एडेड, the equilibrium constant for the overall reaction is the product of equilibrium constant of respective reactions। अगर मान लीजिए कहीं आपने 2 रिएक्शन को ऐड किया और हमें तीसरा रिएक्शन मिल रहा है, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, कि जैसे कोई मान लें यहाँ पे लिखते हैं कि A से B में गए, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और हम B से C में जाएं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया है, मान लेते हैं कि ये K2 है, तब हमसे आपसे पूछेगा कि A से C का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए, तो A से C का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए A से C हमें कब मिलेगा, जब इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने से B भी कैंसिल हो जाएगा, A to C, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रूल के हिसाब से क्या होगा, K1 into K2। ठीक है, क्लियर। तो 3 यहाँ से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर हम किसी रिएक्शंस को रिवर्स कर दें तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले वाले रिएक्शन का इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा।
नंबर 2, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पावर होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका हाफ होगा। एंड थर्ड, अगर किसी दो रिएक्शन को ऐड करें हमें तीसरा रिएक्शन मिलेगा तो ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन दोनों का प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, एडिशन नहीं होता है। ठीक है, एंड देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर which can be expressed by the following expression. So log K2 by K1 equal to delta H upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। इसके लिए हम वांट ऑफ इक्वेशन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको डिराइव भी करेंगे फॉर बीएससी स्टूडेंट्स। सो दिस इज आल्सो नोन एज वांट ऑफ आइसोथर्म, वांट ऑफ रिएक्शन। वांट ऑफ ने थर्मोडायनामिकली डिराइव किया था, दिस इज अ फॉर्म ऑफ क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशंस। ठीक है, सो log K2 by K1 मतलब दो टेम्परेचर मान लिया हमने यहाँ पे T1 और T2, उस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिया K1 और K2। So K1 and K2 are the equilibrium constants at temperature T1 and T2 respectively, and delta H is known as enthalpy change। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए हमें यहाँ पे कंडीशंस को देखना पड़ेगा। ठीक है, सो फर्स्ट केस मानते हैं व्हेन डेल्टा H is 0 that is thermoneutral। तो फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स हमें पता है कि डेल्टा H is 0 मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, न हीट लेगा न हीट देगा। सो नाइदर हीट इज इवॉल्व नॉर एब्सॉर्ब, दैट इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। सो देन log K2 minus log K1 equal to 0। तो राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑलवेज 0। 0 होने का मतलब क्या है, K2 equal to K1। ठीक है, क्योंकि दो नंबर का डिफरेंस अगर 0 आता है तो हमें पता है कि वो दोनों नंबर बराबर होगा। So thus equilibrium constant remains the same at all temperature। The equilibrium constant is independent of temperature, but only for those reactions for which delta H enthalpy change is 0, and such reactions are known as thermoneutral reactions। From thermodynamics, such type of reactions is known as thermoneutral reactions, where delta H equal to 0, neither exothermic nor endothermic। ठीक है, second case when delta H is positive, that is known as endothermic reactions। देखिए राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आने का मतलब T2 minus T1 पॉजिटिव, T1 T2 पॉजिटिव, 2.303 पॉजिटिव, R की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा H यहाँ पे क्या माना, पॉजिटिव। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन राइट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो राइट हैंड साइड जब पॉजिटिव आएगा तो log K2 minus K1 इज पॉजिटिव। ये तभी पॉसिबल है जब when K2 will be greater than K1। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब K2 की वैल्यू K1 से ज्यादा होगा। It means that is the equilibrium constant increases with rise in temperature for endothermic reactions। Only for endothermic reactions equilibrium constant temperature पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, so when delta H is positive that is for endothermic reaction, पॉजिटिव होता है डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो K2 विल बी ग्रेटर देन K1, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। थर्ड केस व्हेन डेल्टा H इज नेगेटिव, such reactions are known as exothermic reactions। So when delta H is negative, no doubt right hand side of this equation is always negative। So log K2 minus log K1 will be negative less than 0, which is only possible when K2 will be less than K1। क्योंकि हमें डिफरेंस निकाल रहे हैं तो K2 की वैल्यू अगर K1 से कम है तो ऑब्वियसली डिफरेंस क्या आएगा, लेस देन 0, नेगेटिव आएगा। So thus equilibrium constant decreases with rise in temperature for exothermic reactions। So only for exothermic reactions equilibrium constant decreases with rise in temperature। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है हमें, तो हमें ये आपको लिखा रहेगा देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस और इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ठीक है, वी कैन नॉट से कि फॉर राइज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, यस, बट ओनली फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस। ठीक है, तो जब तक क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई नहीं करेगा कि किसकी बात कर रहा है, एंडोथर्मिक लिखा है तब तो 100% बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक लिखा है तब तो 100% घटेगा। बट अगर स्पेसिफाई नहीं किया है, वी डोंट नो द नेचर ऑफ रिएक्शन, सो वी कैन नॉट से कि whether this is exothermic or endothermic,
So equilibrium constant may be increase or decrease, with temperature. ठीक है. सो अल्टील जब तक हमें क्वेश्चन भी ये नहीं लिखा है कि इंडोथर्मिक है, तब तक हम नहीं कर सकते कि वो बढ़ेगा या घटेगा. अगर इंडोथर्मिक लिखा है तब तो बढ़ेगा, अगर एक्सोथर्मिक लिखा है तो घटेगा. ठीक है. एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसका एप्लीकेशन क्या है? So first we can predict the extent of reaction. The magnitude of equilibrium constant K means the extent to which a reaction can proceed, that is measuring the completion of the reversible reaction. So if the value of K is larger, then the equilibrium concentration of component on the right hand side of the reaction will be greater than the components on the left hand side. मतलब it has a strong tendency to proceed towards forward direction. ठीक है. So as discussed earlier, so if the value of equilibrium constant is larger, it means it has a strong tendency to move in a forward direction, means the reaction proceed to a greater. Second application of equilibrium constant is that we can predict the direction of the reaction, means whether it is in forward direction or it in backward direction. So equilibrium constant also helps in finding the direction in which reaction proceeds. For this we have to calculate the reaction quotient Q. The reaction quotient is simply the ratio of the product of concentration of the products to that of the reactant. So for example, consider the following reversible reaction A, B, X, Y. So now reaction quotient can be written as concentration of product into X into Y divided by concentration of reactant. Okay? So reaction quotient means concentration of product divided by concentration of reactant. Now, in other words, the reaction quotient is defined as the same way as the equilibrium constant with molar concentration to give QC or partial pressures to give QP. So as discussed in last videos, we can write the expression for the equilibrium constant for a general reversible reaction. So in the same way, A, B, B, C, C, D, D, we can write QC, C in terms of when concentration active mass is expressed in terms of molar concentration, and QPP for partial pressure. Okay. Now there are three cases. First one, if QC is greater than KC, okay, the reaction will proceed in the reverse direction, that is in the direction of reactants. Okay. So if QC is greater than KC, QC की वैल्यू KC से ज्यादा है तो कंसंट्रेशन हमारा क्या है? ज्यादा है. ठीक है. प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्या करेगा? रिएक्टेंट साइड में जाएगा. ठीक है. सेकेंड केस, इफ QC is less than KC, the reaction will proceed in the forward direction. फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. And if QC equal to KC, the reaction will not proceed as reaction is already at equilibrium. ठीक है. तो देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोसेंट दोनों एक ही चीज है. फर्स्ट पॉइंट यहां से कहेंगे तो दोनों एक ही चीज है. व्हेन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो दोनों सेम है. ठीक है. अगर वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा. ठीक है. सो इफ QC इज ग्रेटर देन KC, QC की वैल्यू रिएक्शन कोसेंट की वैल्यू KC से ज्यादा है तो वो कहां में जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन. इफ KC is less than QC is less than KC, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट. ठीक है. फिर इसी को और क्लियर करने के लिए यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. फिर यहाँ पे क्या है? QC और KC दोनों बराबर है, तो बराबर होने का मतलब क्या हो गया? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. अगर रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है तो रिएक्शन कोसेंट और KC दोनों सेम है, एक ही चीज है. बट अगर वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो अगर KC की वैल्यू ज्यादा है तो KC कब ज्यादा होगा? जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो उस केस में ठीक है, देखिए QC लेस देन कमती है, KC ज्यादा है, तो टेंडेंसी क्या होगी रिएक्शन की? फ्रॉम रिएक्टेंट टू
प्रोडक्ट। देन ठीक है, अगर QC ज्यादा है KC कम है तब टेंडेंसी क्या होगा, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। सो हेंस वी कंक्लूड दैट a reaction has a tendency to form product if Q is less than K, the reaction quotient is less than equilibrium constant, and 2 from reactants if Q is greater than K, reaction quotient is greater than equilibrium constant। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चंस मिलता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए अभी हमने यहाँ पे भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो लास्ट टाइम पे केपी केसी रिलेशंस उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखा था, यहाँ में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट यहाँ पे इसकी ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें वही तीन कॉन्सेप्ट था कि रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पावर होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका हाफ। चलिए इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, so first example यहाँ मिली है, the equilibrium constant for the reaction N2 plus 2O2 2NO2 at a particular temperature is 100। so equilibrium constant इसका दिया हुआ है। determine the values of equilibrium constant for following reactions। अब आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है 2NO2 N2 plus 2O2। देखिए इस रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, इसका हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा पहले जो रिएक्शन पूछ रहा है हमें ये देखना है कि उसके मोड ऑफ रिएक्शन को चेंज किया है, मतलब रिवर्स किया है, या स्टेचोमेट्री को चेंज किया है। तो आप देखिए यहाँ पे 2NO2 यहाँ में क्या है, प्रोडक्ट है, बट जो रिएक्शन हमसे पूछ रहा है उसमें 2NO2 क्या दिखाई दे रहा है, रिएक्टेंट। तो साइड को चेंज कर दिया, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो पीछे हमने क्या पढ़ा था, रिएक्शन को अगर रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा 1/100 दैट इज 10 to the power minus 2। ठीक है, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जस्ट बाय रिवर्सिंग द रिएक्शन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी रिवर्स्ड। तो इसका नहीं, यहाँ पे 2NO2 प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हो गया, जो यहाँ रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट हो गया, मतलब रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट। तो वैल्यू भी क्या हो गई, K1 equal to 1/KC 1/100 that is 10 to the power minus 2। ठीक है, इसका हमने निकाल लिया 1/100 आएगा सीधा सीधा। ठीक है, ठीक, अब इसको इससे कंपेयर करिए दूसरे रिएक्शन को, क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ में 2 है बट यहाँ में 2 नहीं है, यहाँ में कुछ नहीं है बट यहाँ 1/2 है, यहाँ में 2 था तो यहाँ में 1 है, मतलब इसको क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया। तो इस रिएक्शन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, पूरे रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया। आप बोलिए पीछे क्या पड़ा था, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, उसका पावर 1/2। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो पावर मतलब स्क्वायर रूट 1/2 को लिखते हैं स्क्वायर रूट कितने का 1/100 या 10 to the power minus 0.1। ठीक है, अब आप दोनों को मिला लीजिए, मतलब रिएक्शन को रिवर्स करेगा तो हम भी इसका रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने के बाद डिवाइड करेगा तो 1/1/2। ठीक है, चलिए इसको देखिए, फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यूज आर गिवन। ए से बी में कोई एक रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 2, बी से सी में इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 4, सी से डी में इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 3। अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A to D। तो देखिए A to D हमें D हमें कैसे मिलेगा, जब हम इन सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो ये B से B कैंसिल हो जाएगा, ये C से C कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा A से D। तो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो अगर किसी रिएक्शन को ऐड करने से कोई तीसरा रिएक्शन मिलता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस रिएक्शंस का प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन K1 K2 K3। वैल्यू आपको दिया है 2 4 3 दैट इज 24। ठीक है, तो किसी रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो पावर 1/2, रिवर्स करने के बाद डिवाइड करेंगे तो पावर 1 का पावर 2 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 उसका पावर 2, ऐड करेंगे तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन, सेम क्वेश्चन, वैल्यू आपको यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ए से डी का पूछ रहा है। अब आप आंसर निकाल के बता दीजिए क्या आएगा। ठीक है,
थर्ड एग्जांपल है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन SO2 plus half O2 SO3 is 5 into 10 to the power minus 2 एटमॉस्फेयर के पावर 1/2। ठीक है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। ठीक है, जो रिएक्शन आपको दिया है और जो आपको पूछ रहा है उसको ध्यान से देखिए क्या चेंजेस किया है। यहाँ में SO3 दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट साइड में, बट यहाँ में क्या आ गया, ये रिएक्टेंट साइड में आ गया। तो पहला काम तो साइड को चेंज कर दिया। ठीक है, SO2 और हाफ O2 यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये रिएक्टेंट है, तो ये इधर में क्या हो गया, प्रोडक्ट साइड में आ गया। जो यहाँ प्रोडक्ट था वो हमारा इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट हो गया। तो साइड तो चेंज कर दिया, तो साइड चेंज कर दिया, तो इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा 1/5 इंटू समथिंग। ठीक है, दूसरा चीज क्या किया है, यहाँ में देखिए आपको 2 दिखाई दे रहा है, बट यहाँ में तो 2 नहीं है। ठीक है, तो मतलब इस रिएक्शन को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका पावर क्या हो जाएगा, 1/ उसका पावर 2। रिवर्स करके मल्टीप्लाई किया है तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, 1/, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 5 इंटू जो भी वैल्यू दिया है 10 to the power -2 इस पूरे का पावर होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर। ठीक है, क्लियर। सो रिवर्स करेगा तो रेसिप्रोकल करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ में दोनों काम किया है तो हम एक साथ दोनों काम करते हैं। तो रिवर्स किया है तो 1/ स्क्वायर करेगा तो उसका पावर 2। ठीक है, या दूसरा तरीका आप ये भी है कि देखिए पहले SO2 plus half O2 किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ में 2, यहाँ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ में 2 हो जाएगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, ये हो गया स्क्वायर। और अब आप रिवर्स कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। सो मल्टीप्लाई करने के बाद भी रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स करने के बाद भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर तो आपको एक ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जस्ट सेकंड का काम है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द gaseous reaction 2A plus BC with partial pressures of PA, PB and PC, वैल्यू दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर्स, प्रोसीड टू द लेफ्ट एट 298 केल्विन। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स Kp फॉर द अबव रिएक्शन इज, ये गेट 2004 का क्वेश्चन है, जिसका हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp बताना है। तो सोचिए। ठीक है, तो पहला तो रिएक्शन लिख दिया, तो Kp इक्वल टू व्हाट, P पार्शियल प्रेशर ऑफ C पार्शियल प्रेशर ऑफ B पार्शियल प्रेशर ऑफ A, वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, मिल गया। तो करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, फॉर द पेयर ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो, N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 अमोनिया, हाफ N2 गैस 3/2 H2 गैस अमोनिया, if at a particular temperature Kp1 and Kp2 are the equilibrium constant for reaction 1 and 2, तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 माना है, इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp2 मान लिया। ठीक है, देन अब आपको दोनों में रिलेशन बताना है, which one is correct, गेट 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या रिलेशन होगा, किसी को भी सोचते हैं। चलिए मान लीजिए कि इस रिएक्शन का हमें निकालते हैं, ठीक है, या इसका निकालते हैं। पहले आपको क्या दिया, हर ऑप्शन में Kp1 Kp1 दिया। चलिए Kp1 को सोचिए 2 के टर्म में हम कैसे लिखेंगे। Kp1 में N2 यहाँ में है, 3H2 यहाँ में है, अमोनिया यहाँ में है, इसमें भी अमोनिया सेम साइड में है, मतलब रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया। क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया ना। सो सेकेंड वाला रिएक्शन हमको कब मिलेगा, जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे, या ये भी आप कर सकते हैं कि 2 वाले को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, तो जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, Kp2, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर क्या आएगा, होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो Kp1 इक्वल टू K2P, मतलब Kp2, तो सेकेंड वाले रिएक्शन को स्क्वायर। यस, क्यों, क्योंकि ये हमें कब मिलेगा, फर्स्ट रिएक्शन, जब सेकेंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इसका पावर 2, इसका पावर 2 मतलब दिस वन। चलिए ये वाला क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपको यहाँ में Kp2 मतलब सेकेंड रिएक्शन को दिख रहा है। तो सेकेंड रिएक्शन कब आ रहा है, जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, स्क्वायर लिखा है ना, ये तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें नहीं मिलेगा, जबकि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब हमें ये मिलेगा, इसलिए ये वाला भी गलत है। ठीक है, सो इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द N2 plus O2 2NO, इसके लिए K की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K दिया है। अब आपसे पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर 1/2 N2 plus 1/2 O2 equal to NO गैस। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का क्वेश्चन है, हो जाएगा। तो N2 plus O2 2NO इसका K है, हमें क्या निकालना है 1/2 N2 1/2 O2, यहाँ में 2NO है बट यहाँ में NO है, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है क्या करना है, बोलिए क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, इसको 2 से डिवाइड किया तब हमें दूसरा रिएक्शन मिल रहा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या आएगा, उसका पावर 1/2। ठीक है, तो अब आपसे ना बता दीजिए क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द गैस फेज रिएक्शन। ये नेट का क्वेश्चन है दिसंबर 2019। कंसीडर द गैस फेज रिएक्शन 2A gas plus 3B gas plus 2C gas at a given temperature. When 2 moles of A are reacted with 2 moles of B, A भी 2 moles है, B भी 2 moles है, then 0.8 moles of C are formed, but कब at equilibrium। so ये यहाँ पे at a total pressure भी आपको दिया है 2 bar। The value of equilibrium constant Kp for this reaction at the given temperature is closest to। चलिए पहले रिएक्शन लिख लीजिए 2A plus 3B 2C। इनिशियली मान लेते हैं कि ये 2 मोल्स है, ये भी 2 मोल्स है, और C कितना है 0, क्योंकि इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज 0। ठीक है, नाउ एट इक्विलिब्रियम, ठीक है एट इक्विलिब्रियम, तो देखिए इसमें 2 मोल्स रिएक्ट कर रहा है, इसलिए इसमें से 2 में से 2x माइनस हो जाएगा, इसमें से क्या माइनस होगा 3x, इसमें ये कितना बन रहा है 2x, और ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज गिवन 0.8 मोल, इसमें ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो कुछ न कुछ तो दिया रहेगा आपको कि कितना रिएक्ट कर रहा है या कितना बन रहा है। तो 2x की वैल्यू हो गया 0.8, यहाँ से x की वैल्यू कितना हो गया 0.4। क्लियर, अब हम ये निकाल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे a कितना बचा, तो 2 minus 2x होना चाहिए, x की वैल्यू आ गया 0.4, तो रख दीजिए, ये हो गया 1.2, 2 minus 3 into 0.4 1.2, 2 में से माइनस कर दिए 0.8, और ये कितना है 0.8। ठीक है, अब देखिए आपको एक क्वेश्चन और चीज दिया था, टोटल प्रेशर। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकाल देंगे, फिर सबको प्लस कर दिया, ये सारी वैल्यू प्लस किया, दिया गया 2.8। क्लियर, अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालिए, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, जिसको हम डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज इसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितना 1.2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना आ गया 2.8, तो ये क्या निकल गया, सिमिलरली ये B का निकल गया, ये C का निकल गया, और Kp के लिए एक्सप्रेशन हमें पता है, Pc का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Pa का स्क्वायर इनटू Pb का पावर 3, रख के सारी वैल्यू सॉल्व कर दिया, ये आ गया 2.4, करेक्ट ऑप्शन C। ठीक है, सो इस तरह का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी CSIR नेट जून 2014 का है। So at a given temperature, consider Fe2O3 solid plus 3CO gas plus 2Fe solid plus 3CO2। इसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 0.05। एक और रिएक्शन दिया है 2CO2 गैस plus 2CO गैस plus O2 गैस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है this one। अब आपसे कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर जो रिएक्शन दिया हुआ है और जिसका हमें पूछ रहा है, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो रिएक्शन हमें कैसे मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा है 2Fe2
O3 Fe2O3 कहाँ में है? बोले यहाँ में है, ठीक है, बट यहाँ में तो 1 है, बट क्वेश्चन में क्या दिया है 2। तो पहला काम क्या दिखाई दे रहा है कि इस रिएक्शन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधा सीधा, ठीक है। यदि वही यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाइंग दिस रिएक्शन बाय 2 वी गेट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो पीछे पड़ा था उसका स्क्वायर, ठीक है। तो हमें 2Fe2O3 मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2Fe2O3, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। देन 4 आयरन, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयरन मिल गया प्लस 3O2, मतलब इसमें कहीं भी इनको CO2 या CO नहीं है। जो रिएक्शन हमें निकालना है क्वेश्चन में उसमें CO2 और CO नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 2CO2 CO प्लस O2 इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें 3O2 चाहिए, O2 कहाँ में है? यहाँ पे ही है, तो इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन दोनों रिएक्शन को, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, उसका पावर 3, नो डाउट, ठीक है। अब दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया, तो दोनों रिएक्शन को ऐड किया तो हमें मिल गया जो हमें चाहिए, ठीक है। और ऐड करेंगे किसी दो रिएक्शन को तो उसका इक्विलिब्रियम क्या कांस्टेंट क्या होगा, उन दोनों रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट। तो फाइनली जो हमें रिएक्शन चाहिए उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल गया K1 स्क्वायर, स्क्वायर क्यों? क्योंकि इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को ऐड किया, तो K1 स्क्वायर प्लस इंटू K2 होल 3, दोनों वैल्यू हमें दिया है, रख के सॉल्व कर दीजिए, मिल गया, ठीक है। तो ये CSIR नेट जून 2014 का क्वेश्चन है। तो नीट से लेके नेट तक इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन हमें मिलता है, ठीक है। चलिए सेम देखिए, नीट 2017 ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2007 रिपीटेड क्वेश्चन। यहाँ भी वही काम करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग, हाँ 3 रिएक्शन दिया है, इनका K1 K2 K3 है, हमसे ये पूछ रहा है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, ठीक है। मैंने तो सॉल्व कर दिया, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए था, ठीक। अब आपको यहाँ में क्या है 2NH3, तो आप ढूंढिए 2NH3 कहाँ में, यहाँ में है, बट देखिए ये प्रोडक्ट साइड में, हमको कहाँ में चाहिए, रिएक्टेंट साइड में चाहिए, तो पहला काम क्या करेंगे, रिएक्शन को रिवर्स, ठीक है। तो इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा 1/K1, ठीक है। तो 1/K1 तो आना फिक्स है, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब क्या चाहिए 5/2 O2, O2 कहाँ में है, यहाँ में भी है और यहाँ में भी है, ठीक है ना। तो इसलिए पहले क्या करेंगे, ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन 1 रिवर्स कर दिया, तो 2NH3 N2 प्लस 3H2 इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया 1/K1, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाइंग द रिएक्शन 3/3, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको देखिए H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2O दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें 3H2O चाहिए, यहाँ में देखिए 3H2O चाहिए और H2O सिर्फ यहाँ में ही है, इसीलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका पावर 3। अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो रिएक्शन 2 मतलब ये वाला रिएक्शन प्लस 3 प्लस 4, तो ये N2 प्लस O2 और यहाँ भी 3/2 O2, टोटल हो गया 5/2 O2, ठीक है ना। और ये इस रिएक्शन का N2 और ये वाला N2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये दोनों ऐड हो गया तो हमें मिल गया 2NH3 प्लस 5/2 O2, ठीक है। उसके बाद क्या मिल गया 3H2O और यहाँ से क्या मिल गया NO। तो जब ऐड करेंगे तो उन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन आ गया K2 K3 होल क्यूब बाई K1, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बी। तो आप इसको इतना करने की जरूरत नहीं, यहीं से पकड़ लेते हैं अगर ऑप्शन पकड़ने की बात है तो फर्स्ट तो 2NH3 इधर में आएगा तो 1/K1 आ गया, इसलिए मैंने पहला ऑप्शन कट कर दिया, 1/K1 देखिए आपको तीनों में दिया है। दूसरा क्या आ रहा है, यहाँ पे H2O है, हमें 3H2O चाहिए, ऑब्वियसली इस रिएक्शन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K3 के पावर 3, K3 के पावर 3 आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, ठीक है।
तो भी कर सकते हैं। तो ये सब शॉर्टकट इस फॉर्मूले पे, कॉन्सेप्ट पे बेस्ट है। तो जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना है, बाकी तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फॉर द रिएक्शन N2 plus O2 to NO the equilibrium constant is K1 given the equilibrium constant is K2 for this reaction 2NO plus O2 to NO2। एक दो रिएक्शन आपको दिया है, व्हाट इज द K फॉर रिएक्शन NO2 half N2 plus O2। ये भी DIPFT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अब आपको दो रिएक्शन दिया है N2 plus O2 2NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। दूसरा रिएक्शन दिया है यहाँ पे 2NO plus O2 2NO2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। चलिए इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमें, चलिए ऐड करने से क्या दिखाई दे रहा है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया N2 1 plus 1 2, ठीक है, और 2 NO2 ऐड किया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे K1 into K2, ठीक है। अब देखिए आपको पूछा क्या था, 2NO सॉरी ये NO2 हाफ N2 plus O2 का पूछ रहा है, और हमने ऐड किया तो क्या मिला हमें 2NO2 N2 plus 2O2। देखने से क्या पता चल रहा है, साइड चेंज है, तो साइड चेंज कर दिया तो NO2 इधर में आ गया, बट यहाँ में 1 है, क्वेश्चन में 1 है, यहाँ में 2 है, N2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो साइड चेंज किया तो 1 by K1 K2 और उसका पावर 1 by 2 क्यों, क्योंकि 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो जस्ट पहली है, पजल्स है, अभी कुछ की पहलियां है, वो बस आपको क्वेश्चन को देखना है कि क्या रिएक्शन दिया है और जो रिएक्शन हमें दिया है पूछ रहा है उसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन HI हाफ H2 plus half I2 is 8.0 दिया हुआ है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का हमसे पूछ रहा है, ठीक है, हो जाएगा। तो पहले साइड को देखिए कि जो आपको दिया है वो H2 plus I2 कहाँ में है, यहाँ में है, तो पहला काम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, फिर सोचिए आंसर आप हमें बताइए क्या आएगा, ठीक है। तो बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया। फिर द टू गैसियस रिएक्शंस 1 and 2 at 250 डिग्री सेल्सियस, दो रिएक्शन है, इसको K1 है, ये K2 है, दोनों में रिलेशन आपसे पूछ रहा है, लेकिन ऑलरेडी दो बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, हो जाएगा, ऑलरेडी क्वेश्चन पीछे किया हुआ है। सो NO plus half O2 NO2, किसी को भी देखिए आपको K2 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 मतलब चारों ऑप्शन में K2 इक्वल टू लिया है। K2 को सोचिए कि K1 में क्या चेंजेस करेंगे फर्स्ट रिएक्शन में कि हमें K2 मिलेगा, तो K2 हमें कब मिलेगा, जब K1 को उल्टा करेंगे, ठीक है। तो जब इसको उल्टा करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, 2 NO2 इक्वल टू NO plus half O2 1 by K1, और फिर क्या करेंगे, ठीक है, हो गया, हो जाएगा। तो आप इसको करके आंसर में बता दीजिए फटाक से। चलिए द रिएक्शन कोसेंट फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 2NH3 is given by, the reaction quotient में अभी पीछे डिस्कस किया है। The reaction will proceed towards right side if, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है, अब आप बता दीजिए। The equilibrium constant for the reaction N2 gas plus O2 gas 2NO gas is given, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दिया हुआ है at 2000 केल्विन। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड 10 टाइम्स फास्टर, सो कैटलिस्ट यूज किया तो इक्विलिब्रियम 10 टाइम फास्ट हो गया, देयरफॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट इज at 2000 केल्विन। सो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होगा, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, रहेगा। चलिए तो पीछे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया फैक्टर में कि कैटलिस्ट जब यूज करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। सो अकलमंद को इशारा काफी, अब आप बता दीजिए, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो कुछ यहाँ में क्वेश्चंस ये लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। So consider the following reactions in which all the reactants and products and gaseous state, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, दूसरे रिएक्शन का दिया है, इस रिएक्शन का पूछ रहा है, ठीक है। अब आप देखिए कि जो हमें पूछ रहा है P2 कहाँ में है, यहाँ में है, Q2 कहाँ में है, यहाँ में है, बट ये प्रोडक्ट साइड में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कहाँ में है, रिएक्टेंट साइड में है, तो क्या करना है समझ गए आप, ठीक है।
पी क्यू आर तो सेम साइड में है, ठीक है। और यहाँ में 1 है बट यहाँ में 1/2 है, 1/2 है, ये इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 1/2 R2 कहाँ में है, R2 यहाँ में है, दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, ऑप्शन बता दीजिए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन इज 100। इस रिएक्शन के लिए व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। जो निकालना है क्या किया, साइड चेंज किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है, साइड चेंज किया, डिवाइड किया, HI वाला क्वेश्चन है, ठीक है, हो जाएगा। आंसर बता दीजिए। K1 and K2 are the equilibrium constant for reaction 1 and 2। फर्स्ट वन रिएक्शन का K1 है, सेकंड वाले रिएक्शन का K2 है, दोनों में आपसे रिलेशन पूछ रहा है, बता दीजिए। सेम क्वेश्चन SO2 प्लस हाफ O2 SO3, ये सब IEEE का क्वेश्चन है। 2SO2 प्लस O2 2SO3, K1 and K2 में क्या रिलेशन है, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया आपको, K1 K2 मिक्स करके दिया है, ठीक है। तो किसी एक को निकालिए एंड देन, ठीक है, तब आप ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, 2 है, यहाँ में 1 है, यहाँ भी 2 है। इस रिएक्शन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो करके बता दीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्वेश्चन सिंपल। फॉर द रिएक्शन 2NO2 गैस प्लस 2NO प्लस O2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है एट 185 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc एट 185 डिग्री सेल्सियस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ में 2NO2 रिएक्टेंट साइड में है, बट यहाँ में क्या है, प्रोडक्ट साइड में है। तो पहला काम क्या किया, साइड को चेंज किया। देखिए ये साइड को इधर मिला दिया है और इधर वाले को इधर लाया है। रिएक्शन को रिवर्स किया तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाएगा। और दूसरा चीज क्या दिखाई दे रहा है, बोलिए, यहाँ में आपको 2NO2 है बट यहाँ में क्या है, सिर्फ NO2 है, मतलब 2 से डिवाइड किया तो कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो उसका पावर 1/2, रिवर्स करेंगे तो रेसिप्रोकल, ठीक है। सॉल्व करके आंसर बता दीजिए क्या है, ठीक है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसका एप्लीकेशन, ठीक है। फैक्टर्स जिस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट प्रीवियस ईयर सेक्शन में हम इसको लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को बना के रखिए, ठीक है। आपने देखा नीट से लेके नेट तक, नेट में भी बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जब लेके आएंगे तो वहाँ में और भी क्वेश्चंस आएगा, इसलिए आप इसको ट्राई करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, आपको आंसर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, क्वांटम फ्रैक्शन, थर्मोडायनामिक क्राइटेरिया, गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन एंड द लिजिटिए प्रिंसिपल। तो दूसरा इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लिजिटिए प्रिंसिपल और उसका एप्लीकेशन। वहां से भी बहुत सारा क्वेश्चन हमें मिलते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली वीडियो लाइक लगे तो आप, अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके रखिए फॉर अपकमिंग वीडियोस और वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड यस, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, कमेंट करिए आप कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये टॉपिक नहीं समझ में आया या ये क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आया, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, एग्जांपल्स को देखिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, ओके।